So what a story we are work out, what a story we are executed. As we are talking about this database, what the thing we have to do for the database. So see guys, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था DBMS को. Okay, DBMS stands for, yes guys, DBMS stands for, DBMS stands for Database Management System. Database Management System. DBMS में एक ड्रॉबैक Database था. Management System. Good. So DBMS में एक ड्रॉबैक था. DBMS में ड्रॉबैक था कि it won't work with the relation of the tables. ये टेबल के रिलेशन के साथ वर्कआउट नहीं करता था. तो what the story getting to be work out, the things has been changed to the next entity called as RDBMS. Things has been changed to the next entity called as RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. Okay, next जो story workout की गई वो story workout की गई in the form of RDBMS, that is Relational Database Management System. तो पहले था DBMS, बाद में आया RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System and these things are getting to be work out into RDBMS. तो RDBMS में क्या होता था, RDBMS में हम लोग दो टेबल्स को रिलेशनशिप देते थे, दो टेबल्स में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट कर सकते थे बिटवीन द डिफरेंट कॉलम्स. जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है और मेरे पास एक दूसरा टेबल है जिसमें और दो कॉलम्स है. तो इसका और इसका मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ इनटू द RDBMS, बट दिस एंटिटी इज नॉट पॉसिबल इन DBMS. तो ये हम लोगों ने वर्कआउट किया था अबाउट द RDBMS. व्हाट अ स्टोरी वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन. फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटाबेस की क्वेरी को. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है, राइट? ऐसा नो, डेटाबेस इज नॉट ऑलवेज रेडी. वी हैव टू create a database. And what is a query to create a database? Create database name. Create database name. Create database name. Right? So we are just creating the database. To get the list of databases, what is the query? Show database. Then to select the particular database among them, Use database name. Then we are created the two tables yesterday. उसमें से पहला जो टेबल था, that was a just simple table. What is the query to work out for that? Create table name, then site. Table name in bracket first column name, first data type. Then data type size. Second column name, Second column name, data type, second data size. type. Third column name, third data type, right ना? Data type and size. Yeah. Okay, varchar जो है वो data type ही बोलते हैं हम लोग उसको. Okay, so that is the third data type we are work out. Then what the next story we have to work out? We are created a table with primary key. And what is in my primary key? Means Does not allow the duplication. Can be used only one. Duplication. Yes, which will help us to stop avoid repetition. taking the repeated values. Repeated value. Okay, so that we call it as an what? We call it as an what? We call it as an primary key. Primary key. तो हम लोग प्राइमरी की को वर्कआउट करते हैं. सो यूज माई DB सेमीकोलन, ये डेटाबेस मैंने वर्कआउट किया था. देन टू गेट द लिस्ट ऑफ टेबल्स, व्हाट इज द लाइन? Show tables. Show tables. शो टेबल्स. Tables. शो टेबल्स. अगर मुझे प्राइमरी की के साथ टेबल्स को क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट डेटा टाइप, कॉमा सेकंड कॉलम नेम, सेकंड डेटा टाइप. जस्ट यूज द प्राइमरी की ओवर देयर. जस्ट आपको वहाँ पे प्राइमरी की को वर्कआउट करना है. देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एंटिटी. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल विद ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम. जैसे मैंने बोला था कि हम लोग को अब जो टेबल वर्कआउट करना है, दैट वी जस्ट वांट टू गो फॉर द टेबल विच इज कम विद द ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम. तो ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम्स के साथ हम लोग टेबल्स को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन. नो, आई जस्ट वांट टू वर्कआउट विद क्रिएट टेबल यूजर डेटा 3. क्रिएट टेबल यूजर डेटा 3. आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम. आप लोगों को एक कॉलम क्रिएट करना है, एक टेबल में एक कॉलम क्रिएट करना है. हाउ दैट कॉलम इज गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दैट कॉलम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. सी, उसमें हमें जो कॉलम क्रिएट करना है वो कॉलम होना चाहिए ऑटो इंक्रीमेंटेड. ऑटो इंक्रीमेंटेड यानी इन द सेंस यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करूँ आई बेस, ओके, और यहाँ से मैं इंसर्ट करूँ ABCD, तो वहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिकली 1 होनी चाहिए.
अगेन 2 होनी चाहिए, अगेन 3 होनी चाहिए, अगेन 4 होनी चाहिए, अगेन 5 होनी चाहिए। जैसे मेरा रिकॉर्ड बढ़ेगा ये कॉलम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? तो अगर मैं यहाँ पे टेबल में एंट्री करूँ तो जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट? क्रिएट टेबल यूजर डेटा 3, ये मैंने लिखा। अब मुझे इसे पहला कॉलम क्रिएट करना है यूआईडी नाम का, जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड हो। तो मैं कैसे लिखूंगा? यूआईडी इंटीजर, सबसे पहले इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या कि देखिए, अगर आपको वैल्यूज को इंक्रीमेंट करना है तो वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगी ना, क्योंकि हम लोग नंबर्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I just write down here integer. Then I am just going to be write down auto underscore increment. AUTO auto underscore increment. INCREMENT. Okay. What is the line we are going to be write down? We are just going to be write down the line to create a table with auto incremented column. तो auto incremented column का पर्पस क्या है? ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम का पर्पस है कि आप ऐसा कॉलम क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। ओके, आप ऐसा कॉलम क्रिएट करोगे जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? वी आर जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन द क्वेरी, क्रिएट टेबल नेम in bracket UID integer auto underscore increment and then simply write down primary key. ओके, सिंपली राइट डाउन प्राइमरी की। आपको क्रिएट टेबल नेम यूजर डेटा 3 लिखना है। उसके बाद यूआईडी इंटीजर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट प्राइमरी की वी हैव टू राइट डाउन। देन वी हैव टू राइट डाउन सिंपली नेम, जो कॉलम चाहिए वो कॉलम का नाम 900, कॉमा मैं लिखता हूँ ईमेल varchar अगेन 900 ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। नाउ यूजर डेटा 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माई डेटाबेस, सो आई विल चेंज टू यूजर डेटा 4। ओके, तो देखिए मैंने अब ये यूज़र डेटा 4 नाम का टेबल क्रिएट किया जिसमें मेरा जो पहला कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है वो बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में जब हम लोग एंट्रीज को ऐड करते हैं तो आपको एनरोलमेंट आईडी मिलता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर स्क्रीन फुल है ना, स्क्रीन शॉर्ट दिख रहा है अभी। एनरोलमेंट आईडी आपको मिलता है। तो इज इट मैन्युअली एलोकेट और ऑटोमेटिकली एलोकेट? Automatically allocate. Automatically allocated. तो सिस्टम क्या करता है ना, आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाला जो एनरोलमेंट नंबर है उसके आगे का नंबर दे देता है, बराबर? अगर हम लोग उस प्रोसेस को मैनुअल रखेंगे तो मैनुअल में तो आपको पता है कि देयर आर द 100% चांस ऑफ द मिस्टेक, एक बंदे को 2 आईडी मिल सकती है। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम यूज करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक होना चाहिए और वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली जनरेट भी होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की टाइप्स को आपको वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू जस्ट वर्कआउट विथ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम, तब जाके आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम्स को वर्कआउट करना है। इज दैट क्लियर नाउ गाइस? Yes, sir. ओके, तो फिर हम लोग इसे कैसे क्रिएट करते हैं? व्हाट इज द क्वेरी? क्रिएट टेबल यूजर डेटा 4, टेबल का नाम लिखेंगे। आप जो कॉलम आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड करना है, वॉट एवर द कॉलम यू वांट टू मेक इट ऑटो इंक्रीमेंट, जस्ट राइट डाउन दैट कॉलम नेम इंटीजर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, राइट डाउन प्राइमरी की कॉमा नेम varchar अगेन ईमेल varchar 900। क्लियर नाउ? ओके ना गाइज? अब अगर Yes, मैं sir. इसे डिस्क्राइब करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूँ तो देखिए पहला कॉलम है यूआईडी नाम का, दूसरा कॉलम है नेम नाम का, तीसरा कॉलम है ईमेल नाम का। ओके, इसमें जो आप लोगों को कॉलम्स मिल रहा है, ये जो नेम नाम का कॉलम है इसके आगे varchar 900 यस नल दिस इज मिसिंग, ईमेल varchar यस नल, और जो पहला कॉलम है जिसका टाइप हम लोगों ने लिया नल इंटीजर, उसे की दी प्राइमरी और उसे बनाया ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट।
ओके तो अगर मैं इसमें अब रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, देखिए अब इसमें मुझे अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मुझे यूआईडी की तो वैल्यू इंसर्ट करनी नहीं पड़ेगी ना, राइट, क्योंकि तो ऑटोमेटिकली सिस्टम देने वाली है, आपका डेटाबेस देने वाला है, बराबर. Yes, sir. Okay, so I need to insert the value of what? Name and email only. So how we can insert the value of name and email? Name and email. So insert into user data 4. Then in bracket I have passed here column. ये ध्यान में रहता है, क्वेरी तो रखिए, मैं इंसर्ट का आपको वापस से बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, नेम, उसके बाद मैंने लिखा ईमेल, देन आई राइट डाउन वैल्यूज इन ब्रैकेट पहले कॉलम की वैल्यू. लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट नेम, सो आई राइट डाउन हियर नेम. आई वांट टू इंसर्ट ईमेल, सो आई राइट डाउन हियर ibis@gmail.com. ओके, गिव द सेमीकोलन. इंसर्ट इनटू यूजर डेटा 4 नेम कॉमा ईमेल values single quotes ibis@gmail.com and this one. So let's see, select star from user data 4. Okay, select star from user data 4. So what we are getting here we are just getting this one. Am I clear, guys? Cleared all of you? ये देखिए 1 जो है ये ऑटोमेटिकली आया कि मैंने इंसर्ट किया? ऑटोमेटिकली. सी, अब मैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ. व्हाट आई एम गेटिंग हियर, सी, अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँ तो सी 1 2 3 4 चारों को 4 अलग अलग आईडीज मिले. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट, ट्राई टू वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट इसे, क्वेरीज को. क्रिएट टेबल विद ऑटो इंटरमीडिएट कॉलम, डू इट फास्ट. इंसर्ट की क्वेरी, दिस वन, गॉट इट. बट चेक फॉर योर कॉलम नेम. ऐसा नहीं है मेरा और आपका कॉलम नेम सेम होगा. आप वही कॉलम नेम पास करेंगे जो आपने वर्कआउट किए हैं. Is it done? Yes, sir. Okay. Tell me the query fast. To create a database, what is the query? Create database name. Everyone have to talk. Harsh, Kala, Pavan, Yuganti, everyone have to talk. Shri, Sakshi, Snehal, Sumit. Everyone have to talk. Sai, Ragini, Praful. Kalyani. What is the query to create database name? Create database underscore name. Create database name. What is the query to get list of databases? Show database. Then to select the particular database from them. उससे अगर हम यूज डेटाबेस नेम, फिर मुझे टेबल क्रिएट करना है नॉर्मल वाला. व्हाट इज द क्वेरी? Create table name in bracket first column name, first data type, comma second column name, second data type, and so on. Right? Yes. Then to create a table with primary key, what is the query? Create table name, column name, then Column name, data type name, primary key, and then second column name, second data type, size, semicolon. column names. How many keys we can declare? How many primary keys we can declare into the single data type? Only one. Only one. And if I want to declare 2 columns as a unique values, I want unique values for 2 columns. What is the query? Unique key. Which key? Unique key, sir. Unique key we have to use. Create Table name in bracket, first column name, first column second column name, size, primary key, unique key. second column, Unique key, then second column name, second data type, size, and then semicolon.
ओके आणि मग त्या सर मग त्या क्वेरी मध्ये आपण एकदा युनिक की टाकली की मग तिथे प्रायमरी की टाकायचीच नाही का सेकंड कॉलमला नाही म्हणजे एकदाच टाकायचं प्रायमरी की इज गोइंग टू बी ऑलवेज यूज ओनली वन्स ओके म्हणजे आता बघा तुम्ही मध्ये एका कॉलमला प्रायमरी आणि सेकंड कॉलमला युनिक लावू शकतो ना. यू can use first column as a primary and second column as a unique key. Point number 1, you can use all columns as a unique key as well. It's not like to be that key you have to use the primary key always and then unique key. This is not again a picture, huh? Getting my point, guys? जसं आता तुम्ही माहिती का फर्स्ट कॉलमला प्रायमरी की दिली सो 1 2 3 4 इन्क्रीमेंट झाली बट सेकंड आणि थर्ड मध्ये डुप्लिकेट चालल्या त्याला Yes, it will accept the duplicate. If I declare this name as a, I can't write down the primary key to the name, ना? लिहू शकतो का या टेबल मध्ये? Is it possible for me to write down the primary key for name? No. And if I want to keep email as a unique, then युनिक की we have to use Unique key. primary key. unique key or primary key. As well as unique and primary. No, we can't use primary. Two primary keys can't use. Unique. Getting my point, guys? Yes. Yes. Only we can go for single primary key in a single table. We have to use unique key over there. Okay? पहला टेबल सिंपल वाला, दूसरा टेबल प्राइमरी की वाला, तीसरा टेबल यूनिक की वाला, चौथा टेबल ऑटो इंटरमीडिएट वाला. सर एक क्वेश्चन था. हाँ यस सर जैसे कि हम लोग क्वेरी जितना रन कर रहे हैं अभी जैसे कि हम लोग अदर लैंग्वेज सीखते जैसे कि अपना C+ हो गया तो मतलब उसके अंदर फाइल के अंदर जाते तो देख सकते थे. इसका हम लोग सेव करने का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है ना, राइट ना सर? नो, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन नहीं है. एक चीज होती है वी कॉल इट एज एन प्रोसीजर. आप आपकी SQL फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. कैसे सर बता सकते हैं एक बार? आई लेट सर कमिट फंक्शन भी होता है ना? सॉरी कमिट हाउ टू पुट द कमिट? कमिट नहीं सर, कमिट डेटाबेस सेव करने के लिए. सो सी एक्चुअली इन MySQL वी नो नीड टू कमिट. ये ऑटोमेटिकली कमिटेड ही होता है. ओके व्हेन यू आर गोइंग फॉर और कमिट. अब मैं पाइथन में बताऊंगा कि डेटाबेस को कैसे कमिट करना है एंड आई विल टेल यू अबाउट द SQL फाइल एज वेल. ओके थोड़ा आगे बताता हूँ. लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेरीज. ओके सर एरर आ रहा है, मैंने सेंड किया है सर. गेटिंग एन एरर. ओके जस्ट अ मिनट वेट. Just let me check who have this error. Sneha, right? Yes sir. You have an error in SQL syntax. SQL. What is the query you are write down? There is a mistake in your query. No need to write down the name and email. See here. Check for the column name and email. Okay. How you are write down? You no need to put the single quotes over name and email. Clear? वो निकाला तो भी वही एरर आ रहा है सर. No, check the query. Put the query into the group. Will help you. Yes. Okay, guys. What the thing we have worked out? What the thing we are executed? We are just execute for this insertion operation and we are just getting its value. Now let's proceed to the next story. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों ने जो देखा वो देखा हम लोगों ने ये क्रिएट वाला ऑपरेशन. अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन. ओके we just have to work out with the insertion operation. So how we can deal with insertion operation? हम लोग insertion के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, हम लोग insertion के लिए कैसे वर्कआउट करें. चलो ये दो क्वेरीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ. देखिए सपोज मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से DSC यूजर डेटा. ओके ये टेबल है जिसमें दो कॉलम है, नेम एंड ईमेल. मेरा टारगेट क्या है? आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू द कंप्लीट टेबल और कंप्लीट कॉलम. ऑल कॉलम्स में मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है. तो हम लोग ऑल कॉलम्स में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करेंगे? व्हाट इज द वे? व्हेन यू आर केम अक्रॉस द कंडीशन टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू द कंप्लीट कॉलम ऑफ द टेबल. अगर आप इस कंडीशन के अक्रॉस आते हो कि आपको कंप्लीट टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप लोग कैसे इंसर्ट करेंगे? फॉर दैट पर्पज वी हैव टू राइट डाउन इंसर्ट इनटू यूजर डेटा. इंसर्ट इनटू यूजर डेटा. सिंपली आपको लिखना है वैल्यूज. सिंपली आपको लिखना है वैल्यूज
इन ब्रैकेट पहले कॉलम की वैल्यू मैं पास कर दूंगा, लेट्स से ibis, okay, and then I write down here comma, I write down here abcd@ibis.com, okay, and enter. Clear guys? Getting my point? Yes or no? Insert into user data values in bracket पहले कॉलम की वैल्यू कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू. जब मुझे पूरे रिकॉर्ड में डेटा इंसर्ट, पूरे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, आई हैव टू जस्ट गो फॉर दिस वन, आई नीड टू राइट डाउन फॉर दिस वन, ओके. लेकिन दूसरी क्वेरी, अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, सी स्नेहा, क्लियर दिस वन, डोंट राइट डाउन द क्वेरीज पैरेलली विद मी, पहले समझ लो बाद में लिखो. सी इफ I want to insert the data in particular column, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए. अब मैं इस क्वेरी को पहले निकाल देता हूँ, लेट्स चेक फॉर दिस वन कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है. ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, कंप्लीट कॉलम में मैंने वैल्यूज लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा. अगर मैं करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग दिस रिकॉर्ड, ओके, जो मैंने इंसर्ट किया है. अब ये वैल्यूज मैंने किस में इंसर्ट की? कंप्लीट टेबल में. आपको ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आपको सिर्फ नेम की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी या फिर आपको सिर्फ ईमेल की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी. ओके, सो हाउ दैट टर्मिनोलॉजीज आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दैट टर्मिनोलॉजीज आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. ये टर्मिनोलॉजी कैसे काम करेंगी, ये टर्मिनोलॉजी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. मुझे पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट की क्या क्वेरी लिखूंगा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन ब्रैकेट पहले कॉलम का नाम, लेट्स से नेम, जो कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उस कॉलम का नाम, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन उसकी वैल्यू. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? यस यस. ओके, तो इस केस में क्या होगा देखिए, अगर मैं सिलेक्ट करूं तो हमने एक ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट की है, एक ही कॉलम में. ओके, तो सेकेंड कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली नल हो जाएंगी. इज दैट क्लियर गाइस? व्हेन वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट विद दिस, क्या चीज हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे दो कॉलम है, एक है नेम, दूसरा है ईमेल. नेम इज नथिंग बट व्हाट? ibis. मुझे जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, और कॉलम, सेकेंड कॉलम की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं, राइट, जो मैंने यहाँ पे पास नहीं की. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस यस. ओके ना? सो लाइकवाइज वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट. इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है, इस तरीके से हम लोग को एग्जीक्यूट करना है. अब जब मैं बोलूँ कि एक ही कॉलम में, एक ही टेबल में मुझे मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, एक ही टेबल में मुझे मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, तो जैसे मेरे पास अगर 4 कॉलम है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड पासवर्ड, मुझे नेम एंड ईमेल की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वी कैन राइट डाउन इंसर्ट इनटू टेबल नेम, नेम कॉमा ईमेल. हैव यू क्लियर गाइस? यस सर. यस. Okay, so try to work out. नहीं समझ ले? So let me explain you. See, suppose I have in some other tables. Let me show you. Show tables. Show tables. Okay, अब मेरे पास यहाँ पे 3-4 टेबल्स हैं. लेट्स से मैं डिस्क्राइब करता हूँ यूजर डेटा 4 को, जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है. ओके, सो आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज. अगर मुझे एक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी रही तो क्या क्वेरी लिखेंगे आप लोग? यस, मुझे इंसर्ट इन नेम की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो क्वेरी क्या लिखेंगे? insert into that column name. No, insert into table name. Guys, मुझे देखिए, टेबल नेम. सॉरी, मैम लिसन व्हाट आई वांट टू से. लिसन, मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है. ओके, आई हैव अ टेबल विच हैव एन 3 कॉलम, UID, नेम एंड ईमेल. मैं बोल रहा हूँ
कि आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है सिर्फ नेम नाम के कॉलम में इंसर्ट करनी है, इनके कॉलम में। 3 rows सर, 3 सॉरी, rows में। हाँ सॉरी 3 3 रोज, rows। नो रोज नहीं, कॉलम। ये तो कॉलम हो गया ना, ऐसा नो। हेलो Yes, sir. I will copy. See, here we are just work out with the 3 columns, huh? Okay, getting now? Yes or no? Yes. Yes. ये 3 कॉलम है, रोज नहीं, ये रो में दिख रहा है, इसका मीनिंग यही है, कॉलम है। Okay sir। क्लियर ना? When you are write down, select star from user data 4. Now tell me, sorry, सर 14 वाला है ही नहीं। see how many columns are there? How many columns? 3 columns. 3 columns ना। जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको कॉलम की इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिलती है। ओके, आई राइट डाउन द क्वेरी डिस्क्राइब यूजर डेटा। इसका मीनिंग क्या है कि उस टेबल की इंफॉर्मेशन मुझे मिले, कौन से कॉलम्स उसमें है। क्लियर ना? Yes, sir. ओके, सो अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम की वैल्यू इंसर्ट हो। सो व्हाट इज द क्वेरी गाइस, व्हाट इज द क्वेरी टू इंसर्ट द वैल्यू ओनली इनटू नेम? क्या क्वेरी लिखेंगे बताइए? insert table इंसर्ट table name in bracket name values Insert into table name and in bracket column name. and then semicolon. या मुझे आपको टेबल का नाम पता है, यूजर डेटा 4। टेल मी द क्वेरी। हाँ, इंसर्ट Into Table Into इंसर्ट इनटू user data 4. data 4 यूजर डेटा 4 name Name नेम in डायरेक्ट bracket name in bracket इन ब्रैकेट नेम values then bracket values वैल्यूज, bracket open हाँ, then values इन सिंगल कोट आई IBase. एम गोइंग टू बी पास द वैल्यूज। व्हाई? क्योंकि वो var कैर है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए हम लोग सिंगल कोट्स में वैल्यू को पास कर रहे हैं। और अगर मैं इंसर्ट करूँ तो दिस इज इंसर्टेड। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज इंसर्टेड और नॉट। हो गया इंसर्ट गाइस? इज दैट क्लियर? अब मेरा कहना क्या है कि मुझे नेम की वैल्यू इंसर्ट करनी है एंड ईमेल की भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, यूआईडी की वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, देन टेल मी द क्वेरी। Insert into user data, then in bracket name, comma email. बाकी के लोग अगर Then मेरे the साथ पैरेलली आप लोग अगर values. क्वेरी लिखते होंगे ना, मैं 100% डैम श्योर गारंटी दूंगा कि आपको क्वेरी ध्यान में नहीं रहेगी। अगर आप मेरी स्क्रीन में टाइप कर रहा हो और आप पैरेलली अगर टाइप कर रहे हो तो आपको ये कभी भी इसकी आउटपुट ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे। पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर क्वेरी को प्रैक्टिस आउट कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो मुझे 2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। क्या लिखूँ? यस साई, व्हाट इज द क्वेरी? रिमेनिंग ऑल कल्याणी। इंसर्ट इनटू into table name, टेबल नेम इज व्हाट हियर? user data User data 4. यूजर डेटा 2 यूजर डेटा 2, 4, data 4 यूजर डेटा 4 इन ब्रैकेट ईमेल name comma नेम कॉमा ईमेल, देन values, ब्रैकेट bracket complete values हाँ, then in bracket name single quoted नेम की वैल्यू एंड ईमेल की Then email की value. इंसर्ट इनटू यूजर डेटा 4 नेम कॉमा, यहाँ पे नेम मुझे देना है, कॉमा मैं ईमेल भी लिखूंगा। ओके, और फिर उसकी सेकंड वैल्यू भी पास करूंगा, कॉमा देके। Yes, लेट्स sir. राइट डाउन समथिंग लाइक दिस वन। इज दैट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? सर जैसे yes यस यस सर मैं कोई क्वेश्चन पूछना, जैसे यूजर डेटा 4 लिया, इसकी जगह पे 2 नहीं ले सकते? कुछ भी लो, तो खाली 2 तक ही? कुछ भी लो। मेरे टेबल का नाम यूजर डेटा 4 है इसलिए मैंने यूजर डेटा 4 लिया। आपके टेबल का नाम ऐसा तो नहीं अच्छा। नेसेसरी है कि मैंने यूजर डेटा 4 यूज किया तो आप भी यूजर डेटा 4 ही यूज करेंगे। अच्छा
टू कॉलम यूज करना तो ऐसा नहीं है 2 कॉलम यूज करना है तो यूजर डेटा 2 लेंगे, नो। ये मैंने लिया हुआ नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो, यूजर, यूजर डेटा, यूजर इन्फो, यूजर डेटा, कुछ भी लो। ओके सर, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस यस। एंड उसका कॉलम्स का और उसके नाम का कोई रिलेशन नहीं है। यस सर। चलो डू इट फास्ट, परफॉर्म विद इंसर्ट हो। मैं जो सीक्वेंस में फायर कर रहा हूँ ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली भी आप वर्कआउट कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट द डेटाबेस, गेट द टेबल्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन। मुझे पता नहीं होता कौन से कॉलम है, या फिर आपको कॉलम दिखाने के लिए मैं बताता हूँ। जस्ट डू इट फास्ट। तक के पहुँचना है आप लोगों को। नंबर्स ऑफ अलग अलग डेटाबेस क्रिएट कीजिए, उसके अंदर अलग अलग टेबल्स क्रिएट कीजिए, उसके अंदर अलग अलग इंसर्ट डेटा को ऐड कीजिए एंड देन डेटा को सिलेक्ट करके देखिए। ओके guys, have you clear what you have to do? Yes or no? Yes, sir. Okay, try to work out on this. We'll go on tomorrow again for the next queries. Insert हो गया, update, delete, बाकी queries को workout करना है. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good night, take care guys.